ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا دم گھٹ جائے گا، مجھے باہر نکالے۔ وہ گاڑی کی ڈگی میں بند چلا رہی تھی۔ اس کا سانس آہستہ آہستہ گھٹنے لگا تھا، جبکہ گاڑی کی ڈگی سے ٹیک لگائے احمد خانزادہ سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب آواز آنا بند ہو گئی تو ہاشم نے ڈگی کھولی۔ معصومہ ہوش کھو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر وہ مسکرایا اور پھر اسے باہوں میں اٹھاتے اس محل جیسے گھر میں لے گیا۔ ہمیشہ کی قید مبارک ہو مسز احمد خانزادہ۔ جب تک تمہارا بھائی میری بہن کو طلاق نہیں دے دیتا، میں تمہیں ہر روز نئی اذیت سے گزاروں گا۔ یہ کہتے وہ نہیں جانتا تھا وہ خود اس معصوم کے عشق میں قید ہونے والا تھا۔ زرمینیں ماں جی کی گود میں سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ اسے آج پھر دورہ پڑا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کی حالت سنبھلی تھی۔ کب ماضی کی کڑوی یادیں اس کا پیچھا چھوڑیں گی؟ وہ زندگی کی جانب لوٹ کر آئے گی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے زرد رنگ، نکاہت اور ناتواں جسم، جیسے وہ صدیوں کی بیمار ہو، کسی کو ٹھیک سے وقت نہیں دے پاتی تھی۔ اب تو لوگ اسے کہنے لگے تھے کہ اس لڑکی کو بس اپنے زخموں کی پرواہ ہے۔ وہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر خود کو بے حس اور مطلب پرست سمجھنے لگی۔ وہ اب اپنی زندگی کے آخری پل گزار رہی تھی۔ جینا تو اس نے کب کا چھوڑ دیا تھا۔ کبھی اس کی چہچہاہٹ پورے صحن میں گونجا کرتی تھی۔ ماں جی اسے غصے میں ٹوک دیا کرتی تھی کہ ایسے مت ہنسا کرو، کسی کی کالی نظر کھا جائے گی۔ اسے اپنی نظریں ہی کھا گئی۔ میں تھک چکی ہوں۔ میں ایک نفسیاتی مریض بن چکی ہوں جس کے ساتھ کوئی بھی زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ نگاہیں زمین پر مرکوز تھیں۔ دو بچے اپنی ماں کی بگڑتی حالت کے پیش نظر بغیر ماں کی گود میں اثر ہوئے سو چکے تھے۔ کئی بار دورہ پڑنے پر وہ انہیں گالیاں دینے لگ جاتی تھی۔ کس نے تھکا دیا تمہیں؟ اور تم نے کب خود سے ہمت ہارنا شروع کر دی؟ تمہیں صرف اپنے نفس سے لڑنا ہے، باقی سب جنگیں تو خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھتے ہوئے نرمی سے پرسش کیا۔ صرف ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بچے کو مشکل وقت میں سنبھال لیتی ہے، اسے سہارا دے دیتی ہے۔ محبت نے مجھے ایسا بنا دیا ہے، میں نے اس انسان کے بغیر رہنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ جواب آیا تو ماں جی لب بھینچ گئی۔ کبھی کبھار انہیں لگتا تھا کہ اس زندگی کے فیصلے کو انہوں نے اس پر مسلط کیا تھا۔ کاش وہ اللہ کی رضا سمجھ کر یہ شادی نہ ہونے دیتی۔ محبت راس نہیں آئی اور پتر دنیا کے کارخانے میں غموں اور دکھوں کا حساب تو چلتا ہی رہتا ہے۔ زرمینیں سمجھ نہ سکی کہ وہ بتا رہی ہیں یا پوچھ رہی ہیں۔ ہر ایک کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے تھے کہ صبر کر لو۔ جو اس حالات سے گزر رہا ہے وہ جانتا ہے کہ صبر کرنا ہے، لیکن جب اسے صبر آئے نہ تو اس کے دکھوں کو سن لینا چاہیے۔ محبت بھی بھلا کسی کو راس آئی ہے؟ الٹا سوال داغا۔ محلے کے لوگوں نے تو باقاعدہ اسے پاگل کہنا شروع کر دیا تھا۔ جب معلوم ہے کہ محبت راس نہیں آتی تو کی کیوں؟ تمہیں معلوم ہے تمہاری محبت نے تم سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ اس انسان نے پلٹ کر تمہیں کبھی پوچھا تک نہیں۔ مقابل عمر میں بڑی تھی لیکن محبت میں صفر تھی۔ وہ سادہ لو انسان تھی، انہیں محبت کی گہری باتوں کا زیادہ علم نہیں تھا۔ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ ماں، تو جانتی ہے تیری بیٹی نے محبت کے گھنگرو پہن کر جو رقص کیا ہے نا، ایسا رقص تو کبھی جسم فروش طوائف زادیوں نے بھی نہ کیا ہوگا۔ لیکن وہ پھر بھی میرا دیوانہ نہیں ہوا۔ میں نے کب چاہا تھا کہ میں اس طرح بے بس ہو جاؤں گی؟ میرے اپنے دو بچے مجھ سے ڈر کر بھاگنے لگیں گے، میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پائی۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر دوبارہ نگاہیں جھکا گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کی خوبصورتی پر تو وہ لوگ مرتے تھے، اور غربت میں ہونے کے باوجود بھی کتنے اچھے گھرانوں سے رشتے آئے تھے، لیکن وہ کسی پر مر مٹی اور خاک ہو گئی۔ تو فیض محبت پر جس نے میری بچی کی یہ حالت کر دی۔
کبھی خود پر ترس نہیں آتا کہ ایک شخص کے جانے سے تم نے اپنی زندگی کو روک لیا ہے؟ جن بچوں کو تم نے جنم دیا ہے انہیں تک بھول گئی ہو۔ وہ خفگی سے بولی تو زرمینیں ہلکا سا مسکرائی۔ دیمک زدہ محبت تھی نا، اندر سے سارے جذبات کو کھوکھلا کر گئی ہے۔ تجھے کیسے سمجھاؤں کہ تیری بیٹی اب ساری بازی ہار چکی ہے ماں؟ چپ رہیں، جانتی تھی یہ باتیں اسے تکلیف دیتی ہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اگر ایسے ہی ہر ہفتے دورے پڑنے لگے تو تمہیں پاگل خانے شفٹ کر دیا جائے گا، جبکہ تم بھی جانتی ہو کہ تم پاگل نہیں ہو، لیکن لوگوں نے تمہیں پاگل سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اگر وہ مجھے لے جانے پر اصرار کریں تو آپ روکیے گا مت۔ میری غیر موجودگی میں بس ایک احسان کیجیے گا کہ میرے بچوں کی تربیت اپنی نگرانی میں کرنا، اور انہیں جب جب محبت کی طلب ہو تب تک ماں کی کہانی سنا دینا۔ اماں جی اس کی کڑوی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ماں جی نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کرنے کا سوچا تھا۔ وہ لوگوں کے کپڑے قسطوں پر لے کر سلائی کیا کرتی تھی، بڑی بوتیک کے آرڈر بھی آتے رہتے تھے۔ اسی دوران ان کی بیٹی زرمینیں کسی کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور ایسی باغی ہوئی کہ اپنی ماں کے خلاف جا کر اس لڑکے کے ساتھ بھاگنے کو تیار تھی۔ ماں بیچاری معاشرے کے سامنے کیا منہ دکھاتی، تبھی بیٹی کے جذباتی فیصلے پر حامی بھر لی۔ اماں، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں نیک بخت ہوں۔ اس نے کہا ہے وہ مجھے رانیوں کی طرح رکھے گا، تو فکر مت کر۔ اپنی ماں کے ہاتھ کو دباتے ہوئے جیسے وہ انہیں آخری تسلی دے رہی تھی۔ زرمینے کا شوہر ایک بگڑا ہوا بدماش تھا جس نے دوسرے دن ہی زرمینے کے اوپر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ ہر ظلم و ستم کے باوجود اپنے شوہر کی گرویدہ بن کر رہنا چاہتی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ وہ شہر چھوڑ کر جا چکا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے۔ اپنی 2 اولادوں کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ بوڑھی ماں جو بیٹی کو رخصت کر کے سکون کی موت مرنے کا سوچ رہی تھی، اس کے کاندھوں پر 2 ننھی جانوں کی ذمہ داری پھر سے آ گئی تھی۔ کتنا کہا کرتی تھی کہ مرد ذات کی زبان کا بھروسہ مت کر، لیکن تجھے محبت کے آگے دکھائی ہی کیا دے رہا تھا؟ زرمینے کے سوئے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ خود سے آنسو بہانے لگی۔ زہلے اپنی نانی سے ہر لاڈ پورا کروانے کی بھرپور ضد کیا کرتی، لیکن ماں کے چلے جانے کے بعد جب سے بھائی نے ذمہ داریاں سنبھالی، جب زرمینے نے ماں کے ہاتھوں میں دم توڑا، تو اس کا ایک ہی فکرہ تھا کہ ماں، مجھے محبت نے تباہ کر دیا۔ احمد اپنی ماں کی باتوں کا بہت اثر لے چکا تھا اور ہر وقت خاموش اور گم سم سا رہنے لگا۔ اگر کوئی انسان اس کی ماں کو پاگل بول دے تو اسکول میں سر پھاڑ کر آ جاتا تھا۔ زہلے کی زندگی 4 دیواری کے اندر قید ہو کر رہ گئی تھی، اور ایسا صرف اسے لگتا تھا، جبکہ دادی اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی کہ بس اس کا بھائی اس کے لیے زیادہ فکر مند رہتا ہے۔ وہ بیچارہ سارا دن مردوں کے ہزاروں چہرے دیکھتا ہے تو اپنی گڑیا کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی گڑیا کو کوئی بھی نقصان پہنچے۔ نانی اماں، آپ تو جانتی ہیں کہ وہاں اسکول میں ہر لڑکی آئے گی، وہاں مجھے کوئی کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ لیکن بھیا تو ہمیشہ میری زندگی کی خوشیوں سے جلتے آئے ہیں، انہیں ہر چیز سے مسئلہ نکل آتا ہے۔ میں اپنا اچھا برا دیکھ سکتی ہوں، آپ انہیں سمجھاتی کیوں نہیں؟ اگر پڑھائی کروا رہے ہیں تو فنکشن میں جانے میں کیا حرج ہے؟ نانی اسے اپنی ماں زرمینے کی طرح ہر بات پر ضد کرتا دیکھ کر دھیمے سے مسکرا دی۔ انہیں اپنے احمد پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اپنی بہن کو بکھرنے نہیں دے گا۔ تمہارے بھیا کو اگر معلوم پڑ گیا کہ تم فنکشن پر تیار ہو کر پہنچ گئی ہو تو تمہارے ساتھ میری خبر گیری بھی کر لے گا۔ نصیب خوبصورتی اور بدصورتی دیکھ کر نہیں لکھے جاتے زہلے۔ زہلے کو خود پر اعتماد تھا کہ وہ کسی کو اتنی اجازت نہیں دے گی کہ کوئی اس کی زندگی خراب کر سکے۔ ہر وقت آپ بھیا کی ڈانٹ پر مجھے ڈراتی رہتی ہیں، خود کیوں بات نہیں کر لیتی؟
कि मुझे जाने की इजाजत दे दें। अहमद सारा दिन का थका हारा घर आया तो जोहले को नानी से लड़ाई करता देखकर ठहर गया। बाहर बरामदे में नानी ने अपनी इकलौती बेटी की तस्वीर को फ्रेम करके लगवा रखा था। जब अहमद की नज़र अपनी माँ के खूबसूरत चेहरे पर पड़ती तो उनकी वो चीखें सुनाई देती थीं। अगर तुम्हें स्कूल फंक्शन पर जाना है तो बगैर किसी मेकअप और तैयारी के जाना होगा। जवाब अहमद की जानिब से आया तो जोहले ने मुड़कर हैरत से अपने भैया को देखा, जो माँ की मौत के बाद बहुत बदल गया था। भैया, वहां सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे। अगर थोड़ा तैयार होकर चली जाऊंगी तो कौन सी बुराई है। स्कूल से घर का सफर 4 किलोमीटर पर है और रास्ते में न जाने कितनी बुरी नजरों वाले मर्द गुजरेंगे। किसके चेहरे पर तमाचा मारूंगा। अब तुम दूध पीती बच्ची नहीं हो जिसको मर्द की निगाहों का इल्म ना हो। मेरी रोक टोक तुम्हें बुरी लगती है, लेकिन जमाने की भीड़ में निकल कर देखो तो इल्म होगा कि तुम्हें कैसी जिंदगी देना चाहता हूं। ये मेहनत मुशक्कत सिर्फ तुम्हारे और दादी के लिए ही कर रहा हूं। जोहले काफी देर खामोशी से बैठी रही। आप मर्द के डर से मुझे घर में बंद के लाना चाहते हैं, क्योंकि आप अंदर से बुज़दिल मर्द बन चुके हैं। आपको तो मेरी ढाल बनना चाहिए कि मुझे जमाने से डर ना लगे। जब तक तुम मेरे साए में रहोगी तब तक मैं ढाल बन सकता हूं। तुम जानती हो मर्दों को खुली छूट देने में पहल औरत करती है, क्योंकि औरत फितरतन जज्बाती है। वो 2 लफ्जों में अपना सब कुछ हार जाती है। बस डरता हूं कि कहीं तुम गलत हाथों में सौंप ना दी जाओ। एक बार मुझ पर एतबार करके तो देखें। अब ये किस किताब में लिखा है कि जिसकी माँ ने गलत फैसले किए हों उसकी बेटी की जिंदगी की रंगीनियां ही खत्म कर दो। अगर आप मेरे लिए सारे सीधे रास्ते बंद कर देंगे तो मैं चोर रास्तों का इंतखाब करना शुरू कर दूंगी। दोनों के दरमियान गहरी खामोशी छा गई और नानी दोनों की बातें सुनकर काफी परेशान हो चुकी थी। ज़रमीने का ख्याल आते ही उनका दिल खींचने लगता था। अहमद ने बड़े होने का सबूत अदा करते हुए अपनी बहन के सारे रास्ते खोल दिए थे और उस यकीन के साथ खोले थे कि उससे अपनी माँ जैसी किस्मत नहीं लिखने देगा। अल्लाह ने अहमद को ऐसा जहन दिया था कि जो चीज़ एक बार पढ़ लेता वो उसके जहन में ऐसे बैठ जाती थी कि दोबारा पढ़ने की कभी ज़रूरत ही पेश ना आती। नानी कई बार अकेले में अहमद को समझाती थी कि माज़ी की गलतियों को इतना सर पर सवार करना छोड़ दो। हम इंसान हैं, जानबूझकर ना सही अनजाने में ही गलत लोगों पर ज़रूर एतबार कर लेते हैं। हाशिम रहमानी के ऑफिस में नई इंटर्नशिप पर फ्रेश ग्रेजुएट को रखा जाता था और वो नई नस्ल को आगे बढ़ने का मौका देने में पेश रहते थे। अहमद इसी सिलसिले में उनके ऑफिस CV लेकर पहुंच गया, क्योंकि किसी भी सूरत उसे ये नौकरी हासिल तो करनी ही थी। यंग मैन, तुम्हारा डिग्री के साथ भी बहुत अच्छा तजर्बा है। क्या मैं जान सकता हूँ ये नौकरियां तुम अपनी CV मजबूत बनाने के लिए कर रहे हो या फिर घरेलू मजबूरियां हैं? हाशिम साहब को वो खुददार लड़का बहुत अच्छा लगा था। सर, शौक से ज्यादा कब ये मेरी ज़रूरत बन गई, इसका मुझे खुद भी अदराक नहीं है। अपनी माँ जैसी नानी और बहन को पालने के लिए मैं छोटी मोटी नौकरी ज़रूर करता हूँ। उसकी बात सुनकर वो धीमे से मुस्कुराए। मुझे तुम्हारी सच्चाई और खुददारी काफ़ी पसंद आई है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर परमानेंट जॉब कर सकते हो। तुम्हारी पिछली कारकर्दगी को देखकर भी मैं काफ़ी खुश हुआ हूँ। शुक्रिया सर। हाशिम साहब की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा भी ऐसा निकल आए तो शायद वो आराम से आंखें बंद कर सके। अहमद अपनी फाइल को उठाते वहां से निकल पड़ा। इस खुशखबरी के मौके पर वापसी पर नानी और अपनी बहन की मनपसंद मिठाई को भी पैक करवा लिया। छोटी बहन का कॉलेज भी शुरू हो जाना था और फीस जमा करवाने के पैसों की फिक्र भी लगी हुई थी। घर की कुंडी बजते जल्दी से जोहले दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ी। अपनी नानी के बुढ़ापे के बाद इस घर के सारे काम वो मिलजुल कर लिया करती थी। सिर्फ खाना बनाना ही उसे मुश्किल लगता था। भाई,
लगता है आज कोई बड़ी खबर है जो इतने अरसे बाद मिठाई हमारे घर को आई है। मुझे बताइए ना, कहीं आपको हमारी भाभी तो नहीं मिल गई? अहमद खानजादा उसकी बात पर हंस दिया। छोटी, तुम दिन ब दिन तेज होती जा रही हो। मेरे सर पर सेहरा सजाने का ख्वाब छोड़ ही दो। अलबत्ता 2 साल में तुम्हारी मंगनी जरूर कर दूंगा। इतनी सी बात सुनते ही उसका मुंह उतर गया, जबकि नानी अम्मा अपने नवासी के चेहरे पर खुशी देखकर खिल उठी। तेरी शादी तो मैं करवा कर छोड़ूंगी। बेटी का कैसा मुंह उतार दिया है। अब बता भी दे किस लिए मिठाई लेकर आया है। नानी अम्मा, मेरी नौकरी लग गई है और दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है जहां मेरी नौकरी लगी है। मैंने तो सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। मेरा बेटा काबिल ही इतना था, उन्हें तो नौकरी देनी ही थी। उनकी बात पर वो मुस्कुरा दिया। जब वो बहुत छोटा था और माँ की तवज्जो और मोहब्बत की जरूरत थी, तब बाप और माँ के दरमियान रोज होती जंग को देखता आया था। उसका बचपन बहुत खराब गुजरा था। अलबत्ता उसके बरक्स ज़ोहले ने ये लड़ाई झगड़े नहीं देखे थे। थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ को पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो कई बार उन्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। हर वक्त अपने आप में गुम रहती थी। इन्हीं सब रवैयों ने उसे बहुत अजीब सा बना दिया था। वो अपने इमोशन और एहसासात को दबा कर चलता था। कहीं भी अपने जज्बात का इजहार नहीं करता था। यहां तक कि कई बार डिप्रेशन और एंजाइटी के दौरे की वजह से कमरे में सारा दिन बंद रहता था। अब नौकरी लग गई है तो गुड़िया को अच्छे से कॉलेज में दाखिल कराऊंगा और बाकी के कुछ पैसे के जहेज के लिए भी जमा करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये इसी सूरत में जाएगी, पहले इसकी मंगनी होगी। ज़ोहले के चेहरे की सारी खुशी मायूसी में बदल चुकी थी। वो खामोशी से अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। बेटा, इतनी पाबंदियां मत बांधो कि वो तुमसे बदगुमान होकर किसी की भी उंगली पकड़ाने पर चल पड़े। अपनी माँ के किए की अपनी बहन को क्यों देना चाहते हो? नानी, क्या आपको वाकई लगता है कि मैं इसको कोई सजा देना चाहता हूं? अच्छे लोग देखकर ही सिर्फ मंगनी करूंगा। शादी का ख्याल तभी दिमाग में लाऊंगा जब हमारी छोटी पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुंच जाएगी। आप भी तो मेरे दिल के डर से वाकिफ हैं, जो इनके इस घर से बाहर निकलते ही मेरे दिल में खौफ सा बैठने लगता है। मैं नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों के लिए वही मिसाल बने जो हमारी माँ हमारे लिए बनी है। बस अच्छे लोग देखकर इसे बड़े फितने से बचाना चाहता हूं। अब सब ये बातें अपने तरीके से ज्यादा बेहतर समझा सकती हैं। वो खुद कमरे में आकर बंद हो गया। सिगरेट साइड के टेबल से निकालकर गहरे कश लगाने लगा। कम उम्री में ही उसने सिगरेट पीना शुरू कर दी थी, लेकिन बहन का ख्याल करते हुए कभी कमरे से बाहर सिगरेट नहीं खोली थी। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अहमद खानजादा ने अपने बलबोते और जहानत से हाशिम साहब का दिल कुछ महीनों में ही जीत लिया था। कंपनी की तरफ से उसे साल के अंदर गाड़ी भी मिल चुकी थी। माली तौर पर उसकी हैसियत काफ़ी बदल चुकी थी। अब वो कमज़ोर जिस्म वाला अहमद खानजादा नहीं था। उसकी वजह से जिस्म और पर्सनैलिटी को देखकर ऑफिस में काम करती लड़कियां उसके आगे पीछे मंडलाने में कोई कसर ना छोड़ती। वो लड़कियों को घास ही नहीं डालता था और ना ही उसका शादी का इरादा था। धीरे धीरे पैसे जमा करके वो एक अच्छे पोश इलाके में छोटा सा घर खरीद लिया था। ज़ोहले अपने ख्वाबों के संदूक को उठाए भाई के एतमाद के भरोसे उसने लोगों की भीड़ में निकलने का फैसला कर लिया। कामरान का ताल्लुक हाई फाई बिजनेस फैमिली से था। रोज बाप की बड़ी गाड़ी में महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनकर निकलता था। ज़ोहले बेंच पर बैठी अपनी उंगली में मौजूद अंगूठी को घुमा रही थी, जो कल ही उसे उसकी सास पहना कर गई थी। अहमद ने अपने ऑफिस में काम करते लड़के को देखभाल कर मंगनी कर दी थी। भाई ने उसे यूनिवर्सिटी पढ़ने की इजाज़त सिर्फ इसी सूरत में दी थी कि पहले उसका रिश्ता किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में आए उसे अभी हफ्ता डेढ़ का अरसा बीता तो एक अदद नई सहेली भी बना ली। वो इतनी जल्दी इस तरह के रिश्ते में बनना नहीं चाहती थी। अपनी भेदयानी में
वो कील ना देख सकी और उठते साथ वो अपने कपड़े पीछे से फाड़ चुकी थी। जब कुछ समझ ना आया कि वो बैठे बिठाए अपने साथ किस तरह की बड़ी मुसीबत डाल चुकी है, तो वहीं खड़े होकर रोने लगी। छोटी छोटी बातों पर वो ऐसे ही रो देती थी। रुकें, मुझे बताएं आप रो क्यों रही हैं? कामरान भागता हुआ उस तक पहुंचा, जबकि घबराहट में ज़ोहले पीछे की जाने बढ़ती। वो नहीं चाहती थी कि उसकी फटी हुई कमीज को देखकर उसका मजाक बनाए या उसका फायदा उठाने की कोशिश करे। ऐसे बहुत से वाकयात वो नॉवेल्स और हकीकी कहानियों से पढ़ती आई थी। अपनी माँ की कहानी पढ़ने में क्या कम अफसानवी लगती थी। देखिए, मैं देख चुका हूं, आपकी कमीज पीछे से फट गई है। इसमें रोने धोने से कोई मसला हल नहीं होगा। ये चादर लें, आपकी कमीज पीछे से फट गई है। वो बगैर ज़ोहले किए सुने अपनी चादर उसके कांधों पर डाल चुका था। कोई और वक्त होता तो वो इनकार कर देती, और अभी भी उसे ये डर था कि अगर किसी ने उसके कांधों पर लड़के की चादर देख ली तो तरह तरह के सवाल बनाएंगे, और वो किन के सवालों का जवाब देकर घर में उसका भाई ही कटहरे में खड़ा कर लेगा। ज़ोहले आज पहली बार उस भूरी आंखों वाले शहजादे को गौर से देखने की गुस्ताखी कर रही थी। अगर उसे मालूम होता ये गुस्ताखी उसे इतनी महंगी पड़ेगी तो वो कभी ना करती। उसकी चाल ढाल और कपड़ों की सिलेक्शन से मालूम पड़ रहा था कि किसी अमीर घराने का इकलौता वारिस है। तीखे नैन नकोश का मालिक, हल्की भूरी दाढ़ी, सफ़ेद रंगत और उसकी भूरी आंखें जिसमें डूब गई थी और कुछ देर बोलने के काबिल नहीं रही थी। इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि अगर यही दिमाग वो सही वक्त पर चला लेती तो कभी भी उस कील वाले बेंच पर ना बैठती। शुक्रिया, जैसे ही मेरे पास और चादर का इंतजाम होता है मैं आपको ये चादर वापस कर दूंगी, वो कहते आगे बढ़ गई। आज उसने इसकी इज्जत बचाई थी। देखिए, मैं इतना बेगैरत और कंजूस वाकया नहीं हुआ कि आप किसी और से चादर मांगती फिरें। आप आराम से घर जा सकती हैं। कल मुझे चादर वापस कर दीजिएगा, इतना भी अहम नहीं है। और अगर आप बगैर चादर के यहाँ किसी को दिखाई दी तो आजकल की सोशल मीडिया वीडियो बनाकर हर जगह वायरल कर दी जाती है। उसकी बात सुनकर वो सिर्फ सर हिला गई थी। दिल ही दिल में इस आदमी के लिए इज्जत बढ़ने लगी। चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट में बसेरा किया और दिल में दुआ मांगी कि ऐसा हमसफर ही तो वो चाहती थी जो उसकी इज्जत करे, भरी भीड़ में उसका मुहाफिज बने। क्या पता उसका मंगेतर भी ऐसा इंसान निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन ये बात वो अपने भाई से नहीं कर सकती थी। किधर थी तुम, और ये तुम्हारे कांधों पर चादर किधर से आई है? तुम ठीक तो हो ना? उसकी दोस्त उसे घूरने लगी। इतने अरसे में उन दोनों में खासी बेतकल्लुफी पैदा हो चुकी थी। उसका रोया हुआ चेहरा देखकर वो काफी फिक्रमंद हो गई। वो कमीज पीछे से फट गई। उसने इशारा किया, फिर सारी बात बता दी। चलो अच्छा हुआ उसने वक्त पर चादर दे दी। मैंने कहा था ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मुझे तो कामरान पहले दिन से बुरा नहीं लग रहा, लेकिन तुमने ही कभी उसे लिफ्ट नहीं करवाई। वो हंसती हुई बोली तो ज़ोहले भी हंस पड़ी। मुझे अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने का कभी इख्तियार नहीं दिया गया। मेरे भाई ने जो मेरे लिए सोचा होगा वही अच्छा होगा, और अगर उन्हें पता चल गया कि यूं किसी मर्द ने मेरी मदद की है और मेरे दिल में उसके लिए थोड़ा सा भी नरम गोशा पैदा हो गया है, तो यकीनन वो इस यूनिवर्सिटी से निकालकर मुझे घर बिठा लेंगे। तुम्हारा भाई खुद भी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। क्या वो इतना तंग नजर और छोटी सोच का मालिक है कि तुम्हें घर बिठा लेगा? देखो, मेरी बात का बुरा मत मनाना, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने का इख्तियार भी तुम्हें होना चाहिए। ये भाई और भाभियों के आते ही बदल जाते हैं। उनके बाद आप जियो या मरो, आपकी जिंदगी से कोई सरोकार नहीं होता। मेरा भाई ऐसा नहीं है। दरअसल उसने सारी जवानी मेरे ऊपर ही लगा दी है। वो अब भी शादी नहीं करना चाहते। उन पर मेरी जिम्मेदारियां हैं। वो अपने भाई की सख्ती से जरूर वाकिफ थी, लेकिन इस लड़की को अपनी मां की कहानी नहीं सुनाना चाहती थी।
उसका दिल भी कुछ देर के लिए खराब जरूर हुआ था। क्या उसका भाई उस पर इतना भी एतबार नहीं करता था कि बगैर मंगनी के फंदे को डाले उसे यहां भेज देता? उसकी सहेली ने तो उसकी बात को सुनते हुए भी फीकी सी मुस्कुराहट दे दी। यकीनन वो उसकी बात से ज्यादा हिमायत करती नजर नहीं आ रही थी। टाइमिंग एंड होने से पहले ही वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे सब लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। उसकी दोस्त की बकौल ये सिर्फ उसका वहम था। अपने भाई को कॉल करने के बाद वो गेट पर आ गई। मिस जोले, क्या फिर से कोई परेशानी है? आप जैसी टॉपर लड़की क्लास लेने की बजाय यहां खड़ी है। जोले, अभी वो कोई जवाब देती उससे पहले अहमद गुस्से से उसके करीब आ गया। कौन हो तुम? और मेरी बहन के सामने ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। अहमद बगैर उसकी बात सुने धड़ाधड़ उसे मारने को आगे बढ़ गया। अगर सही वक्त पर जोहरे उसे खींचकर गाड़ी में ना लेकर जाती तो बहुत बुरा हो जाता। पहले ही उसके दिल में अपने भाई के लिए बदगुमानी पैदा हुई थी और ये बदगुमानी का पहाड़ आगे जाकर सबकी जिंदगियों में तूफान लाने वाला था। आप वहां मेरा तमाशा लगाकर आ चुके हैं। क्या मैं अंधा था? मैंने तुम्हें मना किया था कि किसी भी लड़के से बात नहीं करनी, लेकिन तुमने यहां आते ही वो काम करना शुरू कर दिया। आपको मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ आंखों देखा सच नहीं होता। खुदारा अम्मा के वाकये से बाहर निकलकर मुझे मेरी जिंदगी जीने दे। गाड़ी घर के सामने रुकी तो वो तेजी से गाड़ी से निकलती नानी की गोद में जाकर लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। नानी अम्मा वहां मेरी कमीज कील में फंसकर फट चुकी थी और मुझे रोता हुआ देखकर उसने चादर दे दी। मैं चाहती थी कि मैं उसे मना कर दूं, लेकिन आप खुद बताएं, अगर मैं बगैर चादर के घूमती तो लोग मेरा मजाक ज्यादा बनाते। उस वक्त मैं मजबूर हो गई थी। और क्या इन्हें जरा सा भी मुझ पर एतबार नहीं है? उस लड़के के सामने ही भाई ने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। आपके ऑफिस में भी तो लड़कियां काम करती हैं, फिर मैंने कभी आपकी चेकिंग नहीं की। बच्चे, तुम अंदर खामोशी से जाकर कपड़े बदल लो। तुम्हारे भाई से मैं खुद बात करती हूं। देखो अहमद, आज तक तुम जो कहते आए हो वो तुम्हारी हर बात सुनती आई है, लेकिन इस मर्तबा तुम गलत थे। अहमद भी सर पकड़कर बैठ गया था। शायद गुस्से में वो ज्यादा ही पागल हो चुका था। तभी उसने बगैर बात को समझे हंगामा खड़ा कर दिया। अपनी गुड़िया से माफी मांगना चाहता था, लेकिन जोहले उसे माफ करने को तैयार ही नहीं थी। अगले दिन यूनिवर्सिटी वो खुद रिक्शे के जरिए आई थी और कामरान को तलाश करती वो कैफे में बैठ गई। मैं आपसे माजरत चाहती हूं। दरअसल मेरे भाई मेरे मामले में बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं। आजकल का जमाना ऐसा है कि किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता। मोहब्बत का आगाज कामरान की जानिब से जरूर हुआ था, लेकिन मोहब्बत की शिद्दत जोहले पर आकर खत्म हुई। किसी नोट्स के बहाने या कभी पढ़ाई के सिलसिले में उन दोनों की बातचीत का सिलसिला चलता ही रहता था। घर वालों से छुपाकर वो उसे कभी कभार फोन पर मैसेज पर भी बात कर लिया करती। अहमद की जानिब से उसके दिल में मजीद बदगुमानी वक्त के साथ पैदा होने लगी थी। उस वक्त के भाई अपनी जिंदगी में तो फुल मजे लूट रहे हैं, सिर्फ सारी पाबंदियां मुझ पर आयद करते हैं। 4 साल कैसे पलक झपकते गुजर गए। किसी की जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकी। बस इतना जरूर हुआ कि जोहले मोहब्बत की राहों की हमराही बन गई थी। अब वापसी के कदम लेना बहुत मुश्किल हो गया था। कामरान उसके भाई की आदत को देखते हुए उसे समझा चुका था कि अगर उसका भाई इस रिश्ते के लिए ना माना तो वो क्या करे। भाई, मैं भी शादी नहीं करना चाहती। आप उन्हें बोल दें कि मैं मजीद पढ़ना चाहती हूं। देखो गुड़िया, मैं तुम्हारा रवैया काफी अरसे से देख रहा हूं। शायद तुमने अभी तक मुझे यूनिवर्सिटी की उस बात के लिए माफ नहीं किया, इसीलिए मुझसे दूर दूर भाग रही हो। अगर तुम पढ़ाई की खातिर ये शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुमसे वादा करता हूं, वो लोग तुम्हारी पढ़ाई की राह में कभी भी रुकावट नहीं बनेंगे। तुम्हारी सारी फीस और तालीम के अखराजात का जिम्मा मैं खुद उठा लूंगा। लेकिन अब
अच्छा रिश्ता हम खो तो नहीं सकते। मैंने आपको कह दिया ना कि मुझे वो शादी नहीं करनी, तो इसका मतलब है नहीं करनी। नानी अम्मा उसके बदले लहजे पर हैरान हुई थी। उन्हें ऐसे लगा जैसे सालों पहले की ज़मीनें उनके सामने बोल रही हो। कौन है वो? नानी? अहमद ने हैरत से अपनी नानी को देखा। बच्ची शायद जिद में आकर ऐसा रवैया रख रही हो। मजीद वो अपनी बहन को हर्ट करना नहीं चाहता था। अहमद खानजादा, तुम खामोश रहो। जोहले, बताओ मुझे, कौन है वो? नानी, कोई नहीं। नानी का इतना सख्त रवैया उसने कभी भी महसूस नहीं किया था। यूं लगा जैसे जिस्म से जान निकलने लगी है। पहले तो भाई को मनाना ही उसे मुश्किल लग रहा था, लेकिन नानी का बुरा रवैया देखकर वो घबरा गई। तुम इतनी सी थी जब से तुम्हें पाला है। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। बताओ, कौन है वो लड़का जिसकी खातिर तुम ये शादी नहीं करना चाहती? कामरान हाशिम नाम है। नानी, वो बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है। हमने 4 साल साथ गुजारे हैं और कभी भी उसने कोई गलत हरकत या गलत फरमाइश नहीं की। अभी उसकी बात बाकी मुंह में थी कि नानी का उड़ता हुआ थप्पड़ उसके गाल पर छाप छोड़ गया। वो सर को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी, जैसे कोई अपना मर गया हो। उनकी ये हालत ज़मीने को याद करके हो रही थी। तुम उसे भूल जाओ और मैं अगले महीने शादी की तारीख रख लेता हूं। ये मोहब्बत कुछ नहीं होती। अम्मा को भी अपने बारे में यही खुशगुमानी थी कि जिनसे वो मोहब्बत करती हैं वो बहुत अच्छा होगा। भैया, लेकिन अगर मैं अपने दिल को ज़बरदस्ती इस निकाह के लिए कायल करूंगी तो ये निकाह बातिल होगा। इस्लाम में भी औरत को अपनी पसंद की इजाज़त है। इस्लाम ने तो हर जगह औरत को पसंद को अहमियत दी है। आप लोग मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं? काश हमारी माँ ये नसीब लेकर पैदा ना हुई होती, या मैं उनकी बेटी ना होती, तो आज मेरी जिंदगी बहुत आसान होती। लोगों की जिंदगी कभी अपनी माँ की वजह से भी इतनी मुश्किल हो सकती है, ये कोई मुझसे पूछे। अहमद सर पकड़कर बैठ गया। यूनिवर्सिटी तो पहले ही बंद थी, लेकिन अगर ऐसे शादी तय कर दी तो कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। यही सोच सोच कर उसका दिमाग फटे जा रहा था। जिस डर से वो सारी जिंदगी बचता आया था, वो खौफ अब उसके सामने खड़ा हो गया। तुम शादी तय कर दो, क्योंकि इस बार मैं जज्बात में आकर फैसला नहीं लूंगी। ज़मीने की खातिर भी मैंने जज्बात में आकर अपने फैसले को बदल दिया था। उसने खुद अपनी जिंदगी तबाह की, लेकिन मैं भी उसमें शामिल थी। अगर मैं उस वक्त उसे रोक देती तो शायद वो मोहब्बत की पींगे ना बढ़ाती। नानी अम्मा, 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती। क्या मालूम वो कैसा लड़का हो, हमें एक बार मिल लेना चाहिए। अहमद, ये बात तुम कर रहे हो? सारी जिंदगी मुझसे ज्यादा तुमने इसके साथ सख्ती की है, और अब ऐन शादी के मौके पर हम दूल्हा बदल लें? अगर वो इतनी सच्ची थी तो उसे शुरू दिन से हमें बताना चाहिए था। जोहले के ससुराल वाले आकर शादी की तारीख पक्की कर गए थे। किसी ने इस बात में कोई मजाहमत करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि छोटी ने तो रो रो कर अपनी आंखों का बुरा हाल कर लिया था। नानी और भैया के पास जब भी बैठने की कोशिश करती, वो खुद ही उठकर चले जाते। घर में एक अजीब सा रवैया था। दोनों उसके अजीज लोग उससे नाराज हो गए थे। कामरान उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर वो छुप कर निकाह कर ले तो घर वाले कभी भी उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। उसके भैया और नानी इतने भी सख्त दिल और बदमाश लोग नहीं हैं कि उन्हें जिंदा ही जमीन में गाड़ दें। उसकी बात को मानते हुए एक दिन नानी से बहुत मिन्नत समाजत करके वो यूनिवर्सिटी जाने का कहकर घर से निकली। उन्हें यही कहा कि अब वो शादी की तारीख पक्की करके जब फैसला कर चुकी हैं तो इतना भरोसा भी रखें कि शादी हो जाएगी। वो कुछ देर के लिए अपनी सहेली से मिलने जाना चाहती है। अगर वो चाहें तो फोन और बाकी चीजें भी चेक कर सकती हैं। अहमद शाम को घर आया तो नानी काफी परेशान दिखाई दी। उनसे पूछने पर मालूम हुआ कि सुबह से जोले घर से ये बताकर निकली थी
कि अपनी दोस्त से मिलने जा रही है, लेकिन अब तक तो यूनिवर्सिटी भी बंद हो चुकी होगी, लेकिन वो घर को नहीं पहुंची। आपको एक बार उसकी सहेली से कॉल करके पता कर लेना चाहिए, क्या पता आखिरी दिन वो अपनी सहेली के साथ अच्छा गुजारना चाहती हो। नानी ने सर पर हाथ मारते हुए फोन मिलाना शुरू किया। ये ख्याल उन्हें सुबह से क्यों नहीं आया? कई बार बेल जाने के बाद फोन उठा लिया गया और दूसरी तरफ से जो इत्तला मिली उसको सुनते ही नानी ने दिल को पकड़ लिया। उसकी सहेली बता रही है उनका तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, शायद वो कामरान से मिलने यूनिवर्सिटी ना गई हो। अहमद बैठे बैठे बहुत परेशानी में आ चुका था। आजकल ऑफिस की मीटिंग्स और बाकी काम की वजह से वो घर को ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था। ऊपर से बहन की शादी की तैयारियां भी उसने खुद ने अकेले करनी थी। अम्मा, क्या आपको मालूम है कभी कामरान का नंबर या उसका कोई अता पता मालूम किया हो? नानी रोते हुए नफी में सर हिलाने लगी, अपनी नवासी के लिए दुआएं मांगने लगी। वो जहां भी हो खैर व आफियत से हो। सना से बात करने के बाद उसने कामरान का नंबर उन्हें दे दिया। वो खुद काफी हैरान थी कि जिस लड़की ने बड़ा फूंक फूंक कर इतने सालों से कदम रखा था, वो भला घर से भागने की गलती कैसे कर सकती है। उसने नानी को यह भी समझाने की कोशिश की थी कि शायद वो किसी मुसीबत में ना फंस चुकी हो। आपको यूनिवर्सिटी जाकर भी पता कर लेना चाहिए। अहमद उसकी बात को सुनते हुए यूनिवर्सिटी भी पहुंचा, लेकिन उसे कहीं भी जोहले दिखाई नहीं दी। फोन करने पर मुसलसल नंबर बन जा रहा था। कामरान के नंबर पर फोन किया तो कोई लड़का उठाकर आवाज सुनते ही बंद कर चुका था। यकीनन वो कामरान खुद ही होगा। अब ऐसी सिचुएशन में दिमाग को यही समझ आ रहा था कि जैसे वो दोनों भाग चुके हों। कामरान के घर पता करवाने पर बड़ा शौक लगा कि वो हाशिम रहमानी साहब का इकलौता चश्मो चिराग है। अहमद बच्चे, खैर से मेरे घर पर आना हुआ। वैसे तो तुम्हें किसी पार्टी पर भी बुलाऊं तो तुम मुझसे माजरत कर लेते हो। अहमद को वो अपने बच्चों की तरह समझते थे, इसलिए बड़ी गर्म जोशी से मिलने को आए। इतना शरीफ और अच्छा बनने का नाटक बंद करें आप। मुझे पहले ये बताएं कि आपका बेटा किधर है? कहाँ उसने मेरी मासूम बहन को छुपा रखा है? कामरान के बारे में सुनकर वो हैरानी से देखने लगे। उसने क्या किया है? मुझे उसे घर से निकाले काफी टाइम गुजर चुका है। 3 साल पहले अपने आवारा दोस्तों की वजह से वो घर से निकाला जा चुका है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। उसने तुम्हारी बहन के साथ क्या किया? मुझे बताओ, हम बैठकर हल निकाल लेते हैं। अहमद के लिए यह दूसरा झटका था कि वो आदमी घर से निकाला जा चुका है। उसकी बहन ने ऐसे लड़के का इंतखाब किया है। उसने मेरी बहन को घर से भागने पर मजबूर किया है। आप तो जानते हैं कि कुछ दिन पहले उसकी शादी रखी गई है और अब वो घर से भाग चुकी है आपके बेटे की वजह से, और अब मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में जो मुंह में आता जा रहा था वो बोलता जा रहा था। दिमाग तेजी से सुन्न हो चुका था। उसको समझ नहीं आई कि वो क्या करे। मैं खुद कामरान से बात करता हूं। तुम्हारी बहन सही सलामत कल तक तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। तुम फिक्र मत करो, और मैं अपने बेटे की वजह से शर्मिंदा हूं। कामरान को कुछ अरसा पहले यूनिवर्सिटी में कुछ गलत लोगों की सोबत में जुआ खेलने की आदत पड़ चुकी थी, और वो जुए में अपनी मां का प्लॉट भी हार चुका था। इसी वजह से हाशिम साहब ने उसे घर से निकाल दिया। उन्हें तभी उसके बैंक अकाउंट भी बंद कर देने चाहिए थे, लेकिन उन्हें लगा शायद घर से निकलकर वो सुधर जाएगा। हाशिम साहब की 2 औलादें थीं। बेटी जितनी नरम दिल हंसमुख थी, बेटा उतना ही जिद्दी और बिगड़ा हुआ था। एक रात से अगली रात होने को आई थी। नानी ने रो रो कर अपनी तबीयत तक खराब कर ली थी। अहमद ने कह दिया कि अब उसकी बहन उसके लिए मर चुकी है। आपको ऐसी लड़की के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाशिम रहमानी ने कामरान से बात करने की कोशिश की तो उसने यही कह दिया कि वो अपनी बीवी के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुका है और वो बिल्कुल भी पलट कर वापस नहीं आएगा। जब मियाँ बीवी दोनों राजी थे तो फिर घर वाले उन्हें कैसे जबरदस्ती अलग कर सकते थे।
लेकिन कुछ अरसे बाद 1 महीने के अंदर अचानक से एक दिन जोहले का रोते हुए अहमद को फोन आया। वो मदद को पुकार रही थी। भाई, वो अहमद लाख नाराज सही, लेकिन ऐसे रोते तड़पते अपनी बहन को नहीं देख सकता था। तभी उसकी लोकेशन को ट्रेस करते फौरन वहां पर पहुंचा तो वो जमीन पर जख्मी हालत में पाई गई। इस घर में कोई मर्द नहीं था। शायद ये सब कामरान ने उसके साथ किया था। वापस घर लाने पर अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि काफी तशद्दुद के बाद वो कोमे में जा चुकी है। शायद उसे बहुत मार पीट में रखा गया है। हाशिम साहब की नौकरी वो उसी दिन छोड़ चुका था जिस दिन उसकी बहन उस घर से भागी थी। मोहब्बत का अंजाम ऐसा ही लिखा जाता है। इसी वजह से वो अपनी बहन को बहुत समझाता था। मुंतहा कॉलेज से वापस आ रही थी कि अचानक से किसी गाड़ी ने उसका रास्ता रोका और जैक लगाकर उसे बाहर निकाल लिया। बंदूक को देखकर उनका ड्राइवर भी काफी ज्यादा डर चुका था। आगे बढ़कर मदद के लिए क्या ही हाथ बढ़ाता। मेरा दम घुट जाएगा, मुझे बाहर निकालें। कौन हो? वो गाड़ी की डिग्गी में बंद चिल्ला रही थी। उसका सांस आहिस्ता आहिस्ता घुटने लगा था, जबकि गाड़ी की डिग्गी से टेक लगाए अहमद खानजादा सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। कुछ देर बाद जब आवाज आना बंद हो गई तो उसने डिग्गी खोली। अपनी बहन को वापस लाने के लिए वो यकीनन यहां जरूर आएगा। जिस तरह उसका दिल आग में जल रहा था उस तरह कामरान का भी जलना चाहिए। मुंतहा होश खो चुकी थी। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार देखकर मुस्कुराया और फिर उसे बाहों में उठाते उस महल जैसे घर में ले गया। रात के इस पहर शायद नानी गहरी नींद सो चुकी हो, इसलिए खामोशी से लाकर उसे सोफे पर लिटा दिया। लेकिन जल्द ही उस लड़की की आंख खुल चुकी थी। अपने आप को गैर घर में पाकर वो चीखने चिल्लाने लगी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये इंसान कौन है और उसकी क्या दुश्मनी है। शायद उसके अब्बा के कोई दुश्मन हो। देखो, तो मुझे मेरे घर वापस जाने दो। मेरा इन सब में कोई कसूर नहीं। मैं एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखने वाली शरीफ लड़की और शरीफ लड़की का शरीफ भाई। इतना कहकर वो कहकहा लगाने लगा। तुम्हारे खानदान के घटिया मर्दों को दूसरों की इज्जतों से खेलकर बड़ा सुकून मिलता है ना। मैं जानता हूं तुम किस घटिया बाप की गंदी औलाद हो। अब मासूम बनने का नाटक क्यों कर रही हो, जैसे तुम दूध की धुली हो। वो तो मानो उसके कानों में सीसा उंडेल गया। उसका कमजोर दिल बंद होने के करीब था। आप मेरे बारे में जानते क्या हैं? मेरे बाप के बारे में या मेरे बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? और आप मर्द होने की हैसियत से कौन से झंडे गाड़ रहे हैं? वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर सरकश लहजे में कहती उसे मजीद सुलगा गई थी। नानी लाठी को तेजी से थामते वहां पर पहुंच गई थी। अपने पोते को किसी लड़की के साथ लड़ते झगड़ते देखकर वो तेजी से आगे बढ़ी। अहमद बेटा, किस बच्ची को उठा लाए हो और ये इतना रो क्यों रही है? नानी का सहारा मिलते ही मुंतहा जल्दी से उठती उनके पल्लू के पीछे छुप चुकी थी। नानी, आप इस मामले में बिल्कुल नहीं बोलेंगी। इन लोगों ने समझ क्या रखा है कि मेरी बहन को तबाह करके खुशी खुशी जिंदगी गुजार लेंगे। वो गुस्से से पागल हो चुका था और इस वक्त उसे कुछ भी समझाना बिल्कुल बेकार था। अभी न जाने उस बूढ़ी जान ने कितनी और मुश्किलें देखनी थी। अपने खानदान के मर्दों के बारे में सच सुनकर बहुत मिर्च लग रही है ना। अगर मैं उन जैसा होता तो यहां तुम जिंदा सलामत ना खड़ी होती। जानती हो तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को कितना मारा है? पूरे 2 दिन से कोमा में पड़ी है। वो उसके बाल मुट्ठी में दबोचता हकारत से बोला। मुंतहा ने हैरत से देखा, क्योंकि यकीन कर पाना बेहद मुश्किल था। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? भाई से मुलाकात हुए भी कम से कम हमें 3 साल गुजर चुके हैं। वो कभी अब्बा और मुझसे मिलने घर को नहीं आई। तकलीफ में तड़पते वो सफाइयां पेश कर रही थी। छोड़ दो, तकलीफ में मर जाएगी,
नानी ने आकर छड़ी से उसे पीछे हटाया और वो सोफे पर बैठकर गहरे सांस लेने लगा। नानी, इस जैसी औरतों का अच्छे से पता है। उसके बालों को मजीद सख्ती से दबोचता नफरत आमेज लहजे में बोला। पागल मत बनो, कुछ मुझ पर रहम करो। वो सर पकड़कर बैठ चुकी थी। तुम्हारी बहन ने घर से भागने का फैसला खुद किया था। उसके साथ कामरान ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। वो जिस अंजाम की सजा भुगत रही है उसकी कसूरवार भी वो खुद है। मैंने उसे ऐसी तरबियत से नहीं पाला था कि तुम किसी और औरत के लिए जबरदस्ती की सजा बन जाओ। तुम उसको जबरदस्ती उठा कर लाए हो। इस बच्ची ने खुद तुम्हारे साथ आकर अपनी सजा तजवीज़ नहीं की। अपनी बहन के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो उस कामरान को पकड़ कर लाओ और उसे सजा दो ताकि मर्दों को सबक हासिल हो। मुंतहा खामोशी से सुन रही थी। लड़की, तुम बाहर जाकर ड्राइवर को मेरे बारे में बताना कि नानी ने तुम्हें कहा है और तुम वापस अपने घर लौट जाओ। 1 हफ्ता गुजर चुका था। अहमद जो गुस्से में अपनी गलती कर चुका था, उसे इस बात का अच्छे से अंदाजा हो रहा था। जब ज़ोहले को होश आया तो मालूम पड़ा कि उनके घर कामरान के कुछ पुराने आवारा दोस्तों ने कब्जा कर लिया था। दोनों मियां बीवी उन्हीं से लड़ रहे थे जब वो कामरान को मार कर अपने साथ ले जा चुके थे। उसकी लाश हाशिम साहब तक पहुंच गई थी। ज़ोहले को यही मोहब्बत का अंजाम मिल चुका था, जबकि हाशिम साहब फिर भी अपनी बहू से माफ़ी मांगने घर ज़रूर आए। उन्होंने अपना ज़र्फ बड़ा रखा था। ज़ोहले ने अपनी ज़िद में मुंतहा और अहमद का निकाह करवा दिया। उसने अपने भाई को यकीन दिलाया कि वो जिस लड़के के साथ घर से भागी थी वो इंसान बिल्कुल बुरा नहीं था। जितना अरसा वो उस इंसान के साथ जिंदगी गुजार कर आई है वो उसका कुल सरमाया है। कामरान ने कभी उसकी इज्जत और आबरू पर कोई आंच नहीं आने दी। उसके मर जाने के बाद ही उन लोगों ने फ़ायदा उठाकर उस पर जुल्म और सितम करने का सोचा था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उसकी इज्जत रख ली। अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी थी तभी वो एक फलाही स्कूल में नौकरी करने लगी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मोहब्बत का अंजाम बुरा ही हो और जिससे मोहब्बत की जाए वो इंसान अच्छा ना निकले। हर इंसान के पर्चे अलग हैं, उसके हिसाब अलग हैं और वो अपने हिस्से की गलतियां करके ही रहता है। नानी,